जैसे हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं, लाइक वो अपने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लेते हैं, अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स लेते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे आर टू एक्सपेंसिव और सिर्फ वही लोग ले सकते हैं, या उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज यही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वैसे सीमा मैम के साथ। सो इनके बारे में थोड़ा मैं अप्रॉक्स एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगी, लाइक शी इज़ इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 25+ ईयर्स अप्रॉक्स। इन्होंने लाइक थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इन्होंने सर्व किया है अपनी पूरी लाइक हिस्ट्री में। सो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लाइक मैम के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, इन्होंने क्या अभी तक करा है, एंड इनकी एग्जैक्टली प्रोफाइल क्या है और क्या सर्विसेज मैम देती हैं। सो ओवर टू यू मैम। Thank you so much. Thank you for having me on your podcast. And I've always, I don't know what achievement. I think my achievement is primarily to be able to give the best service to my clients over the years and be able to sustain myself in this industry. Okay. And I think people like me, so I think that's one of my achievements, that people refer my business and they definitely come for their procedures to us. I really think that's one of my biggest achievements. Wonderful. And as far as my work concerns, I'm the founder of Provaro Spa Private Limited and Aesthetico, the facial, laser and pro bar. And this is my passion, absolute passion. I was born into a family. I was blessed that my mother was into this industry. And as a kid, I was always hopping along with her, learning the trade as to how she would manage the employees and the guests who would come for the services. And as a child, I knew that, okay, wow, this is something very fascinating. Over the years after my marriage, I worked with many corporates, I worked with many hotels. And after my family, like my children were born, I decided to study further in this, industry. And after having completed my education of hair and skin from, Core Wellness Limited, and also worked with many doctors. We started our company in 2012. Okay. And after having started and done few setups like Amari Resorts and Kanosti Resorts in Kerala, I decided to launch Nomadic Salon, which was into home services division for women. Okay. And in 2017 is when we started Aesthetico, the facial bar. Now in this, what we primarily do is, I'm totally a pro for the regular facials, which give you a good lymphatic massage. But we have to move with times. We have to move with science. And the facials that we have now are very medically inclined, in the sense, gone are the days where people used to say, oh, tumne mera face chala diya, lal ho gaya. Honestly, now the kind of treatments that we have, we actually give you a peel which takes out the epidermal layer, gives you a cleaner skin, takes out the tan that you have with sunburns, etc. Facials which are a lot of inclined towards anti-aging treatments like radiofrequency based rituals, microneedling. Microneedling is a super procedure. I think today everybody is looking at something little invasive which gives you a great collagen boost. So these are the rituals that people are liking at our place. And also we are into laser hair reduction, and something that I'm again very passionate about is permanent brows and dark lip correction, etc. Many people say that there is a lack of symmetry between both my brows. People say मेरी ये eyebrow इधर जाती है, वहाँ जाती है. So we as artists try and give you lot of symmetry for brows to the clients. And everybody has some asymmetry. किसी की एक brow नीचे जाती है, कोई ऊपर जाती है, किसी के sparse brows होते हैं, and somebody wants to have a thicker brow, or they want some sort of an arch, or they want to look like some celebrity. Okay, give me a brow like that particular celebrity. Okay. So we try and achieve those goals. Great. So that is something, it's a booming thing in the industry right now, and we really take pride that we do a lot of brow clients these days. Great. So जैसे कि मैम ने भी अपना ओवरव्यू दिया लाइक अबाउट हर इंट्रोडक्शन, सो इसमें मैंने एक दो पॉइंट्स नोटिस करे, शायद मेरी ऑडियंस ने भी करे होंगे, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे।
आपने बीच में मेंशन किया प्री निडलिंग समथिंग काइंड ऑफ Yeah. थिंग ना, सो ये मुझे भी आज पहली बार सुनने को मिला, एंड जितना मुझे नॉलेज है आई थिंक इंडिया में इतना अभी इसका फेवर नहीं है, राइट? इंडिया में लोगों को अभी तक इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि व्हाट इज इट, ये होता क्या है एग्जैक्टली, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आप भी नहीं ले सकते, और ये होता क्या है, सो लाइक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं कि मैम ये एग्जैक्टली होता क्या है, लाइक हमारे ऑडियंस को ऐसी क्या प्रोज एंड कॉन्स और क्या चीजें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो उनको पता होनी चाहिए, कि लाइक दे विल आल्सो गेट अवेयर अबाउट दिस कि व्हाट इज प्री निडलिंग माइक, या So basically, microneedling देखने में या सुनने में, नीडल सुनते ही हम लोग डर जाते हैं. नीडल फेस पे, मेरा फेस ठीक है, मुझे नहीं कराना. It's not natural. But honestly, it's a very very good procedure because आपने कभी भी देखा होगा जब आपकी चोट लगती है, आपको घसर जब लगती है, कहीं स्क्रैप हो गया, वो जगह जब हील होती है 5-6 दिन के बाद और जब वो स्क्रैप उतरता है, वो जगह एक अलग ही शाइन करती है, एक अलग ही उसका टेक्सचर होता है. सिमिलर वे ऑन द फेस, कंट्रोल्ड वे में हम लोग नम करने के बाद, उस एरिया को, फेस को नम करने के बाद, नीडलिंग से हम या तो आपकी ब्लड से पीआरपी निकाल के या सिरम्स, हम उससे नीडलिंग से प्रोसीजर करते हैं. इसमें हम बड़े कंट्रोल्ड वे में करते हैं सो दैट इवनली आपकी एरिथमा बने, छोटे छोटे टाइनी बम्प्स बने. और जब ये बम्प्स बनते हैं और हम जब सिरम जब हील होता है प्रोसीजर के बाद, स्किन एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म एकदम से ऊपर हील करने के लिए काम करने लगता है. कोलेजन रीजनरेशन बहुत जबरदस्त होती है. सो दिस इवेंचुअली गिव्स यू अ ग्रेट स्किन. दिस इज ग्रेट फॉर ओपन पोर्स. आपको अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग है, थोड़ा सा हल्का सा पिगमेंटेशन भी है, माइक्रोनीडलिंग इज द वे टू गो. आई थिंक आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. स्पेशली अगर आपकी रोजेशिया बेस्ड स्किन है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि अवॉइड करें. बट अगर आप अपने क्लोज बाय कोई भी प्रैक्टिशनर के पास जाके पूछ सकते हैं whether it will suit you. Usually it's done in a controlled way. It's one of the best procedures. ग्रेट मैम, ग्रेट. सो इसी को थोड़ा फर्दर कंटिन्यू करते हैं कन्वर्सेशन को. तो जैसे कि मैम ने मेंशन किया, ऑल द सर्विसेज जितना भी आपने मेंशन किया सारा रिलेटेड टू है हमारी स्किन, हमारे फेस एंड हमारे हेयर से, राइट? सो आपने भी देखा होगा बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो लाइक ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं. हम लोग भी जब कभी देखते हैं, न्यूज़ में आता है कि इसने लिप फिलर कराया है, इसने ब्रोज कराई है, समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमें लगता है कि यार ये लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपनी स्किन पे, राइट, टू जस्ट लुक ब्यूटीफुल. सो ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो लुक ब्यूटीफुल एंड यू कैन ऑल्सो टेक द सर्विसेज फ्रॉम सीमा नंदा मैम. इफ यू वांट टू टेक द कंसल्टेशन ओनली, यू कैन ऑल्सो जस्ट रीच आउट टू हर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम और जानते हैं कि लाइक इसी इंडस्ट्री में फॉर द सेम सर्विसेज क्या क्या ऐसे चीजें हैं और जो कवर होती हैं, एंड कौन कौन से लोग मैम को अप्रोच करते हैं. इसमें एक चीज जो मुझे अभी तक पता चली है, लाइक ऑब्जर्विंग योर कन्वर्सेशन, कि प्री ब्राइडल्स भी आई थिंक जो अपना सेशंस लेती हैं सैलून्स में जाके, पार्लर्स में जाके, राइट? सो वो लोग भी इस ट्रीटमेंट को इन द परमानेंट वे भी ले सकती हैं, राइट? सो प्री ब्राइडल में कैसे वर्क करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम प्री ब्राइडल क्या क्या कौन से ऐसे लोग हैं जो कनेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. तो मैम थोड़ा उसके बारे में ओवरव्यू दीजिए कि लाइक प्री ब्राइडल्स की क्या सर्विसेज होती हैं, वो कैसे इसे अवेल कर सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? Definitely. So basically हमारी जब शादी होती है, very few seldom time हमें ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारी छठ मंगनी पट ब्याह हो रहा है, बट अदरवाइज हमें पता होता है 6 महीने, 8 महीने, साल भर हमारे पास टाइम होता है. So usually girls and even the grooms these days are very very smart and sensitive and they want to look really good on their D-Day. So planning usually 6 महीने, 8 महीने पहले से शुरू हो जाती है. कभी कभी एकदम तुरंत शादी होती है तो 3 months का भी गैप इज गुड टू वर्क. बट आपके पास अगर 6 से 8 महीने हैं शादी से पहले, सो मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, लेजर हेयर रिडक्शन, इससे क्या होता है आपके, यू रियली फ्री ऑफ द हैसल ऑफ वैक्सिंग. ओके. एंड आपकी कोई ब्रोज में इशू है, ब्राइड्स लव टू गेट ब्रोज. इनफैक्ट मेरे पास आजकल मेन, लॉट ऑफ मेन हु कम फॉर ब्रो कलर पिगमेंट इंड्यूस करने के लिए, सो दैट किसी किसी की ना ब्रोज स्कैंटी होती है, कहीं से बाल कम होते हैं. सो एक अच्छा सा फीचर देने के लिए, बुशी लुक देने के लिए, इवन बॉयज दीज डेज आर गेटिंग माइक्रोब्लेडिंग डन. डार्क लिप करेक्शन है, ओके. वी डू डार्क लिप करेक्शन ताकि 2 से 3 सिटिंग्स
हाइड्रा फेशियल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी पॉलिशेस, दीज आर द थिंग्स दैट वी डू. एंड मोस्टली मेन बॉयज जो आते हैं अपनी बियर्ड शेप करवा के, दे वांट टू एक्स्ट्रा हेयर ऑन द बियर्ड टू बी रिमूव्ड. So these are the trends that we're seeing, and lot of inquiries for all this. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो इसमें लाइक इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने अपनी कन्वर्सेशन में पहले भी मेंशन किया था मैम, कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग अपनी लाइक ब्यूटी को और एनहांस करने के लिए सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, राइट? उसी रिलेटेड कई सारे हमारे पास ऐसे रूमर्स भी सुनने को आते हैं कि लाइक वी कैन नॉट गो इन सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकते हैं, या फिर हम जो है कहीं पर भी रैंडमली कोई भी अपनी स्किन पे डायरेक्ट प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक, है ना? तो काफी सारे ऐसे रूमर्स सुनने में आते हैं. सो लाइक इन रूमर्स को क्लियर करवाना चाहूंगी मैं बाय योर साइड, कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता, या फिर क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए आफ्टर दीज ट्रीटमेंट्स, या फिर ऐसे कौन से रूमर्स हैं जो फेक है कि ऐसा कुछ नहीं होता है. सो बेसिकली इसका क्लैरिटी आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को दीजिए. So, for example, sun exposure, is it's not really a rumor; it's a precaution. जो हर प्रोसीजर के बाद आपको लेना चाहिए, अगर आप like माइक्रो नीडलिंग भी ले रहे हो या केमिकल पील ले रहे हो, इवन छोटा प्रोसीजर लाइक आप ब्रोज भी ले रहे हो, सनस्क्रीन इज सो इम्पोर्टेंट. नाउ ये हो कि हमने विंटर में एक अच्छी सी पील ली और पील निकल बहुत बढ़िया से बेबी स्किन बाहर आई 7वें दिन, और हम जाके धूप सेक रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, so it damages your skin more. So yes, it's a precaution that you need to take mandatory, especially जब immediate आपका कोई peel हुआ है या कोई laser procedure हुआ है, you have to guard your skin. So there is no harm, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, but you have to know that you have to take care of sun exposure after these treatments, and there are no side effects as such. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो ये बात सच है, मतलब कि सुंदर दिखने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है. सो डायरेक्ट धूप में नहीं जा सकते. बट ये बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली, आई थिंक ऑडियंस को भी मिली होगी, लाइक एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू दीस थिंग्स. सो कंटिन्यू करते हैं अपने पॉडकास्ट को. लाइक कुछ एक मेजर पॉइंट्स मेरे माइंड में आए हैं जो मैं मैम के साथ डिस्कस करना चाहूंगी. आई होप ये पॉडकास्ट देखते देखते बाकी लोगों के माइंड में भी यही सब आए होंगे, बिकॉज एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे पास माइंड में ये बेसिक क्वेश्चंस आती नहीं है सारी चीजें देख के. सो पहला जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है मैं वही पूछना चाहूंगी, दैट इज कि लाइक फेशियल्स, राइट? आपने मेंशन किया था अपने इंट्रोडक्शन में, तो फेशियल्स हमारे सैलून्स में भी लोग कराते हैं, राइट? फेशियल्स हमारे नॉर्मल पार्लर में भी लड़कियां कराती हैं. सो वो फेशियल्स और आप जो फेशियल्स मेंशन आपने किए उसमें क्या डिफरेंस है, एंड बेसिकली कौन से बेटर है? सो उसका और क्या प्रोसीजर है ऑल्सो, कि कैसे ये वर्क करता है, क्या प्रोसीजर है सब, तो उस बारे में थोड़ा मैम आप बताइए कि लाइक व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड हाउ इट विल वर्क एंड व्हाट इज द बेटर. Right. या You know what? हम जब भी फेशियल कराते हैं, लाइक मैनुअल फेशियल्स जो हम भी करते हैं एट टाइम्स, उसमें क्या होता है, लाइक लिखा होता है दैट दिस फेशियल इज फॉर एंटी एजिंग, दिस फेशियल इज फॉर एक्ने. But how can the same massaged facial be the same for anti-aging? How can you just do a pack which is only anti-aging without using any medical grade machine? So जो medical grade machine based facials होते हैं, they target that particular concern. In the sense, if I'm, for example, my skin is full of comedones, whiteheads, blackheads भरे हुए हैं, फेशियल करने के बाद मैनुअली निकालने से भी वो कम होते हैं. बट जब हम फेशियल्स हाइड्रा फेशियल्स लेते हैं, उसमें कंजेशन जो हाइड्रा फेशियल की निकलती है, वो आप एक्चुअली देख सकते हो कि आपके स्किन में कितनी कंजेशन थी. ऑब्वियसली एक मेडिकल ग्रेड फेशियल उसे एक तरीके से डीप लेयर से निकालता है जो एक नॉर्मल मसाज वाला फेशियल नहीं निकालता. एंड ऑल्सो जब हम मशीन्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं मुझे एंटी एजिंग करनी है, मुझे I want a facial which will help me anti-age, but I don't want to age faster. हाथ वाले फेशियल में बस हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, हम कोई मशीन यूज नहीं कर रहे. बट हमारे फेशियल्स में जैसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर करते हैं, वो एक्चुअली टारगेट करता है एंटी एजिंग के लिए. सो you're trying to understand is that a manual facial does benefit, but a medical grade facial gives you a better result, a targeted result. So I always suggest people to go for something which is target oriented
And आजकल I've seen kids are all highly educated. Our generation is very highly educated, and they know that what gives a better result. So I always recommend to see your modality. आप क्या machines use कर रहे हैं, and which gives you a better result rather than going to a salon based facial. ग्रेट ग्रेट. सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग बेटर हमारे यही फेशियल्स हैं जो लाइक हम मशीन्स यूज करके करते हैं एंड मेडिकेशन जो हम यूज करके करते हैं बिकॉज वो हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देते हैं. जो सैलून वाले होते हैं वो एक तो हार्म भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो लॉन्ग टर्म भी नहीं होता. राइट. ग्रेट. सो इसमें मैम प्रोसीजर क्या है, लाइक हाउ मेनी सिटिंग्स आर देयर एंड हाउ दिस विल वर्क, लाइक how you guide your like customers related to this, how you deal with this? Sure. So basically, every client's skin is very different. So if you're looking for a monthly maintenance, we chalk out, we see the skin and tell you what modality, hydra jayega, microneedling jayegi. If you're coming for open pores, then you require 3 to 4 sittings or 3 to 6 sittings if you have acne pits. If you looking for pigmentation removal, we do a combination with chemical peels, we do it with laser toning, etc. If you have acne, you require maybe a few sittings of peels with carbon laser facials, etc. So every person's skin is different. Yes, you need to have a chart planned. Your exfoliation at the clinic is very important to be planned well with your cosmetologist. कहते हैं. So जैसे कि मैंने पहले भी अपने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे थे कि मेरे माइंड में जो चल रहे हैं, जिसमें से एक ही पॉइंट की क्लैरिटी हमें मिल चुकी है ऑलरेडी. सो सेकंड जो मेरा पॉइंट था मैम, दैट इज लेजर. बिकॉज आजकल मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ सोशल मीडिया पे भी इतने एड्स आते हैं, मेनी थिंग्स, जगह जगह पोस्टर बैनर्स लगे रहते हैं, लेजर ट्रीटमेंट इतने में, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. सो लेजर ट्रीटमेंट इज गेटिंग कॉमन इन पीपल राइट नाउ. राइट. सो लाइक उसका लोगों में क्या है कि लाइक हमें डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, या आज कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता एग्जैक्टली किससे हमें इस चीज को लेके कंसल्ट करना चाहिए रिलेटेड टू लेजर ट्रीटमेंट. सो उसका ही हम थोड़ा क्लैरिटी लेना चाहेंगे कि लाइक सेम अगेन व्हाट इज द प्रोसीजर, कितना सेटिंग्स होता है एंड व्हाट लाइक हाउ इट विल वर्क एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस. सो प्लीज. I think this is a valid question, and Lisa, gone are the days where we run every month for waxing rituals to parlors, because laser is such a wonderful technology that it targets the hair and it kills the roots, and you would see that there is a reduction in the hair growth depending on your hair growth. In fact, we see 6 to 8 sittings is what you require to get rid of your hair to about 80% reduction. Okay. And there are times when you have hormonal issues, in the sense when you have PCOD, PCOS, and the results will take longer. And but it doesn't mean that the result nahi aata hai, but it takes longer, and you must take maintenance session. आपकी 8 सिटिंग हो गई है, आप साल में 1 या 2 बार जरूर लेजर कंटिन्यू करें. इससे क्या होता है, you will be one absolutely hair free, and also the benefit of laser is even it kills the dark pigment on the skin. In the sense आपको लग रहा है I'm feeling that my skin is going darker, laser even targets the melanin in your skin. So I think everybody should start very young, to have no patches on your body. In fact, you would not believe, Lisa, that I have clients who are about 18. Mothers are very particular that the daughters should get lasers done. Oh. So that the waxing ritual is not even touched on the body, and they have a very smooth skin, absolutely spotless skin. So I think everybody must shift to laser hair reduction. And yes, when you choose laser, you must check your practitioner. What laser are they using? Are they using diode, or what modality they're using? Are they using a cool tip diode? So there are different lasers in the market, and the prices differ from, you would feel that some practitioner is charging very less and some
बेटर है कि Yes. लेजर ट्रीटमेंट, बिकॉज वैक्सिंग हमें हर 2 हफ्ते में एक बार, डिपेंड ऑन द हेयर ग्रोथ टाइप, सो हमें हर 2 हफ्ते में या हर 3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में लेना पड़ता है, बट इट्स अ फार बेटर देन वैक्सिंग कि आप एक बार में ट्रीटमेंट लें, बट उसको जो है केयर करें, उसकी लाइक अच्छे से उसको मेंटेन करें, एंड यू विल जस्ट बी हेयर फ्री, राइट? Yeah. Okay, so the last point I have to just ask you, ma'am, which is bros. Okay, आजकल बहुत ही लाइमलाइट में है कि मेरी आईब्रोज अच्छी रहे एंड मैं मेरा लाइक आईब्रो परफेक्ट हो। हम कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास भी जाते हैं मेकअप कराने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप जो करते हैं वो ब्रोज ही हमारे बनाते हैं, राइट? सो जस्ट गेटिंग अ लाइक ब्रो परफेक्शनिस्ट, राइट? सो वी कैन टेक द ब्रो सेशन टू, so उसी के बारे में थोड़ा जानते हैं, सेम अगेन, Yeah. what is the procedure and what are the settings? Definitely. Yeah. So basically, there are, it's basically, when you're doing it for the first time, you definitely require 2 sittings, in a gap of 30 to 45 days after the first procedure. Now, जब आप हमारे पास आते हैं, पहले हम आपको अच्छे से consult करते हैं कि what are you going to expect, in the sense आपके पहले 3 दिन क्या होगा, चौथे 5वें दिन क्या होगा, और 7वें दिन क्या होगा, and color कब stable होता है. So it's a real beautiful journey of getting a brew defined or structured by us or anywhere for that matter. Here in Aesthetico we use a very fine ink called Perma Blend. It's the best in the world, and इसमें जैसे clients की interest, माने आप चाहते हैं आपको बिल्कुल dark brows चाहिए, या आपको hair follicle kind of a look चाहिए, या आपको combination चाहिए, जैसे आपको front में hair follicle look चाहिए और बाकी ऐसे लगे कि मेरे thick brows हैं, मुझे makeup करने की जरूरत ना पड़े. So we find different people with different choices, interests, and we work accordingly. So there are different types of permanent brow procedures. Like I have nano blading, nano micro needling, we have ombre brows. So usually we work in combination. Now जब हम grow करते हैं, आपको डिस्कस करते हैं आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, हम उसे एरिया को मैप करके दिखाते हैं आपकी फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से. मैप करने के बाद आप जब अप्रूव करते हो कि ओके दिस इज द शेप दैट आई वांट, हम उसे नम करते हैं अबाउट 45 minutes to the time that we feel that the client would be comfortable to get the procedure done. उसके बाद हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. प्रोसीजर अराउंड 1.5 hours का होता है नमिंग के बाद. एंड पहले 3 दिन जब हम ब्रो करते हैं ऐसे लगता है ओ माय गॉड द ब्रो इज वेरी वेरी डार्क, सुंदर बहुत लगते हैं, आपकी सेल्फीज बहुत सुंदर आएगी, और ऑल्सो रिमेंबर बच्चे बोलेंगे आप क्या कार्टून लग रहे हो. बट डोंट वरी ऑन दैट, बिकॉज चौथे 5वें 4th 5th 6th डे आपकी स्कैबिंग माने पपड़ी झड़ती है. पपड़ी झड़ने के बाद 7th डे आपको लगेगा ओह कलर ही नहीं आया, मैंने इतनी मेहनत करी और कलर नहीं आया. बट इट्स ऑल फाइन because this is a part of the game. कलर आपका धीरे धीरे 15 to 25 days के बीच में स्टेबल होता है. And usually first sitting में we usually play what the client wants and play a little safe and the color of the client's choice. And second sitting में हम changes कर सकते हैं, in the sense आपको थोड़ा thick चाहिए, आपको कलर थोड़ा dark चाहिए. So that is when we fix your shape and the brow. And after doing the procedure 1.5-2 years तक आपकी ब्रोज बिल्कुल ही सुंदर रहती है. आपको ब्रोज पे कोई पिगमेंट, कोई टचअप नहीं करना पड़ेगा. यू विल जस्ट गेट अप, वॉश योर फेस, hydrated, put a lipper and off you go. So it's a very good procedure. Along with brows, the best other treatment which many people now take is dark lip correction. इसमें भी procedure, इसमें भी down times होते हैं, but it's one of the best procedures to get rid of dark lips. Great, wonderful. So I think almost सारे ही जो major points थे related to all the skin, hair and our beauty, so हम cover कर चुके हैं, right? So इस conversation को further आप लोग personally मैम से जो है continue करिएगा in her DMs और personally face to face. Okay, so मैं थोड़ा brief description not brief, I just want to give you a description. आप मैम से connect कर सकते हैं over Insta, over Facebook, over her website. I will just mention link of all these things in our description. Okay, and मैम का जो clinic है
based in Sector 26, Noida. So you can just come here, meet her, take her consultation, like take your consultation with her. So you can just